हेलो, वेलकम टू केम डॉक्टर एबी। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर से रिलेटेड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस विथ explanation. Let us start the questions of today's class. Now these are the questions in front of you. You can see on the screen. Now these are the questions which are 1 mark questions. These are 1 marks questions. Very short answer type of questions are related to 1 mark type of questions. So this first question which is in front of you, so we will be solve it. What is the answer of this question? We will solve it. Now let us read first of all the question, that is, what type of reaction is represented by the digestion of food in our body? So that is the question. ओके, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस टाइप की रिएक्शन ये रिप्रेजेंट की जाती है बाय डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। यानी हमारे बॉडी में जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन, ठीक है ना। सो ये जो डाइजेशन है ये किस टाइप की रिएक्शन होती है ये, ठीक है ना। डाइजेशन जो भी हो रही है ये भी एक तरह की क्या है, इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ रिएक्शन। इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ रिएक्शन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि डाइजेशन में एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। व्हाट हैपन एक्चुअली इन डाइजेशन, ठीक है। सो इन डाइजेशन व्हाट हैपेंस, द कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स, द कार्बोहाइड्रेट्स and proteins, okay, the carbohydrate and proteins, okay, they get what happens with them, this carbohydrate and proteins get decompose, or we can say break down into, ठीक है ना, into what we can say, that glucose and amino acid. Again further this glucose and amino acid break down. Okay, so what happened until the complete decomposition occur, ठीक है, this reaction is going on. So this happens in digestion. Okay, so we can say here that the type of reaction is decomposition reaction. So what will be your answer? What happening in digestion? The large molecules are break down to form smaller molecules. Okay, so the answer will be decomposition reaction. Okay, decomposition reaction. So the first question is completed. Now let us move to the new, or we can say the next question. That is the next question you have on the screen. Okay, we have to write answer of this question. Now what this question says, name the various types of chemical reactions. Okay, so it is very simple question, because what happened what is given there, only various type of chemical reactions के बारे में अपने को बताना है. So let us write here the type of reactions. You know very well that there are 4 type of reactions which are given in your book. Okay, types of reactions. Okay, so first type is combination. Okay, second type that is decomposition. There is a third type
that is displacement reaction. Fourth one, that is double displacement. Okay, and also one of is given here. Okay, that we study about the oxidation reduction, so that also we will include redox reaction. Okay, so these all the type of reactions you have to study in class 10 CBSE. Okay, so this is the answer of your second question. Now let us move toward the next question, that is third one. Okay, so we have a space here, so we will solve it. तो चलिए सॉल्व करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड नंबर का. सो आंसर ऑफ third question. Now, what is the third question? Why does the color of copper sulfate solution change when an iron nails is kept immersed in it? So why? Okay. Why does the color of copper sulfate change? Okay. So first of all, for example, with the help of diagram, I would like to explain this question. Okay. So for example, this one. Okay. So what is the color of copper sulfate? What is the color of copper sulfate? So we know that the color of copper sulfate solution is blue. Color of copper sulfate solution is blue. And what happening? We are immersing the nail. Okay, nail, which is an iron nail, and the color goes to be changed. Okay, now the color is going to be changed. Okay, so I would like to tell you that when iron nails react with copper sulfate, so it form a type of chemical, or we can say the product, which has a color. Which color it has? So it has a green color. Okay, it has a green color. I would like to tell you the type of reaction also, and also the reaction chemical equation. Okay, so the chemical equation of for this reaction is copper sulfate plus iron, as we are using the iron nail, so I have write here. Okay, so let us correct it. इसको अच्छे से लिखेंगे हम लोग. सो ठीक है. सो कॉपर सल्फेट, ठीक है, कि रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं आयरन के साथ में, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए फेरस सल्फेट प्लस कॉपर. ओके, तो ये जो रिएक्शन है यहाँ पर हो रही है. सो कॉपर सल्फेट का जो कलर रहता है, ठीक है, कॉपर सल्फेट का जो कलर रहता है वो रहता है ब्लू. ठीक है ना, कॉपर सल्फेट जो होता है, ये जो कलर होता है इसका, ये ब्लू कलर होता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर दिखाया. क्लियर है? ठीक है ना. आयरन जो होता है इट इज जनरली कैसा रहता है, ये ग्रे कलर का रहता है. क्लियर है? नाउ फेरस सल्फेट, ये जो फेरस सल्फेट होता है इट इज ऑफ ग्रीन कलर. ठीक है, ये कैसा रहता है, ग्रीन कलर का रहता है. और ये जो अपने को कॉपर है, ठीक है ना, ये कॉपर की कलर की अगर मैं बात करूँ तो इट हैज अ रेड ब्राउन कलर. ठीक है, ये जो कॉपर अगर आप देखेंगे आप, ठीक है ना, अपने घर में भी आप देख सकते हैं कॉपर. सो इट इज अ रेड ब्राउनिश कलर. सो इस तरह का जो है हमको रिएक्शन में देखने को मिलेगा. सो क्वेश्चन में यही पूछा गया था, हालांकि मैंने आपको जो है एक्सप्लेन किया चीजों को ताकि आपको अच्छे समझ में आए. क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा गया कि व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल्स इज केप्ट इमर्स्ड इन इट. सो इट इज बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉपर सल्फेट. ठीक है, क्यों कलर चेंज हुआ? इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉपर it is due to the formation of a ferrous sulfate. It is due to the formation of a ferrous sulfate in the reaction. Okay, so that's why the color of copper sulfates changed. Clear है? तो ये आंसर आपको लिखना है. Now let us move toward the next question, that is fourth number. So the fourth number question is, write the balanced chemical equation for the following reaction. Okay, so we have to write here the balanced chemical
equation. So let us write the balanced chemical equation for this question. That is the question number 4. Question number 4. So we will write the answer. But first of all, we should understood the question. Okay. So write the balanced chemical equation for the following reaction. So first of all, there is given zinc plus silver nitrate. ठीक है ना? Silver nitrate and the formation of zinc nitrate ठीक है, zinc nitrate plus silver. So what will be the answer? So what will be the answer? Answer is very easy. Okay, बस आपको क्या आना चाहिए, आपको जो है यहाँ पर आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो भी एलिमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, केमिकल्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, उसका सिंबल आपको पता होना चाहिए. जिंक का जो सिंबल होता है Zn, ठीक है ना. सिल्वर नाइट्रेट, अगर मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट का जो है आपको फॉर्मूला बनाता आना चाहिए. क्लियर है? तो सिल्वर नाइट्रेट का जो है फॉर्मूला क्या होगा? सिल्वर नाइट्रेट मतलब देखिए, सिल्वर जो है ये 1 पॉजिटिव शो करता है, नाइट्रेट जो आयन होता है वो 1 नेगेटिव रहता है. तो जो फॉर्मूला हमारा बनेगा ये कैसा रहेगा? ये जो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा, ठीक है, ये जो हमारा फॉर्मूला यहाँ बनेगा ये रहेगा दैट इज AgNO3. अब देखिए, अगर मैं जैसे इस रिएक्शन की बात करूँ, ठीक है, ये वाले रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये जो कौन सी रिएक्शन है? ये है डिस्प्लेसमेंट. ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट. क्यों? क्योंकि एक हाईली रिएक्टिव जो आपका एलिमेंट है, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है उसके कंपाउंड में से. सो सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पर भी अगर हम बात करें, यहाँ पर भी हमको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर जो सिल्वर है ना, और यहाँ पे जो जिंक है, तो जिंक ये ज्यादा रिएक्टिव है देन सिल्वर. तो जिंक क्या करेगा? सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा. ठीक है, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ जिंक नाइट्रेट. सो देखिए, जिंक की जो वैलेंसी होती है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जिंक की जो वैलेंसी होती है, जिंक हैज अ टेंडेंसी टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो इट विल फॉर्म Zn डाई पॉजिटिव, है ना. ये क्या फॉर्म करेगा? Zn डाई पॉजिटिव ये फॉर्म करेगा. नाउ जिंक हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म 2 पॉजिटिव आयन, यानी Zn डाई पॉजिटिव. इट मींस दैट ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा. और 2 इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? जो इस पार्ट में इसका जो कॉम्पिटिटर है ना, तो जो कॉम्पिटिटर है दैट इज सिल्वर. सिल्वर क्या लेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा. तो हमको यहाँ बैलेंस करना जरूरी है. लेकिन देखिए, जिंक अगर डाई पॉजिटिव है तो नाइट्रेट कितने लगेंगे? नाइट्रेट तो 2 लगेंगे. क्यों? क्योंकि जिंक डाई पॉजिटिव, नाइट्रेट कैसा है? 1 नेगेटिव. तो फॉर्मूला जो बनेगा वो कैसा बनेगा? जिंक NO3 ट्वाइस प्लस सिल्वर. अब जिंक NO3 ट्वाइस है, ये फॉर्मूला बनेगा क्योंकि जिंक की जो वैलेंसी डाई पॉजिटिव है ना. इसका मतलब नाइट्रेट 2 टाइम्स है, मतलब बैलेंस करना है अपने को. बैलेंस कैसे करेंगे? तो बैलेंस करने के लिए आपको देखिए, सबसे पहले तो आपको केमिकल फॉर्मूला सही तरीके से लिखना जरूरी है. नाउ बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे 2 लगाना जरूरी है. 2 लगाएंगे तब जाके 2NO3 होगा. और यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है? यहाँ पर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है. नाउ दिस रिएक्शन, ओके, दिस इज योर रिएक्शन व्हिच इज बैलेंस्ड. ठीक है ना. तो ये जो रिएक्शन है आपकी, ये कैसी है? ये अब बैलेंस्ड हो गई. क्लियर है? सो इस तरह जो है हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. सो यू विल राइट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ द क्वेश्चन इज व्हिच term is used to indicate the development of unpleasant smell. Okay, so whenever we talk about the unpleasant smell, okay, unpleasant smell, okay, इसका मतलब किसके बारे में बात कर रहा है? वो फूड के बारे में बात कर रहा है. So unpleasant smell and taste in fat and oil containing food. Okay, foods अगर आपको दिख रहा नहीं होगा तो let us zoom this question. तो ये आपको बेहतर तरीके से समझना है. क्वेश्चन देख सकते हैं. Which term is used to indicate the development of unpleasant smell and fat and unpleasant smell and taste in fat and oil containing food due to aerial oxidation. Okay, so the term used, okay, you know very well that the term used is that is what?
it is a rancidity. Okay, rancidity is the term. Okay. So whenever the food becomes rancid, that is which produce a unpleasant smell, है ना, वो जो स्मेल है वो अच्छी नहीं आती, अनप्लीजेंट रहती है ना. सो खट्टा हो जाता है खाना, अगर आप खा नहीं सकते, इस तरह की जो है उसकी स्मेल आती है, दैट इज कॉल्ड एज अनप्लीजेंट स्मेल. सो दैट प्रोसेस, ओके, through which it happen is nothing but it is called as a rancidity. उसको हम लोग क्या कहते हैं कि जो फूड है हमारा rancid हो गया है ना, जो प्रोसेस is called as rancidity. Okay? So that is the term used. क्लियर है. तो बहुत आसान सा जो है ये सवाल था, तो उसका जो आंसर भी है इसी तरह से आसान है. नाउ 6 नंबर का जो क्वेश्चन है हम उसके और आगे बढ़ते हैं. नाउ जो 6 नंबर का क्वेश्चन है क्या है वो, व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ द केमिकल्स which are added to fat and oil containing foods to prevent the development of rancidity. It is very simple. देखिए जो rancid actually होता क्या है, क्यों है ये rancidity होता क्यों है, it is due to oxidation of food. Oxidation of food, है ना, मतलब जो भी खाना है अपने पास में, जो भी अपने पास में खाना है ना, इसका ऑक्सीडेशन अगर होता है ना, जो फूड है वो ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आता है, तो देयर इज अ ऑक्सीडेशन ऑफ दैट ऑयल व्हिच इज प्रेजेंट इन द फूड, और जिसकी वजह से वो जो भी ऑयल है, जो भी उसका स्ट्रक्चर है, वो क्या होता है, डैमेज होता है, और उसकी वजह से नया कंपाउंड बनता है जो कि कैसा, एक अनप्लीजेंट स्मेल प्रोड्यूस करता है. सो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होने की वजह से जो है ना, जो हमारा खाना है वो रैंसिड हो जाता है. तो रैंसिड होने से बचाने के लिए जो हम लोग केमिकल यूज करते हैं, दैट केमिकल्स आर कॉल्ड एज एंटीऑक्सीडेंट. एंटीऑक्सीडेंट, है ना. सिंपल सी बात है, जैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको रोकने वाला कौन है ना, जो ऑक्सीडेशन को रोक सके, तो कौन है वो, एंटीऑक्सीडेंट, है ना. तो ये जो है एंटीऑक्सीडेंट, ये ऐसे केमिकल्स है जो फूड को रेंसिड होने से बचाते हैं, है ना, फूड को रेंसिड होने से बचाते हैं. क्लियर इतनी बात. सो जो नेम आएगा, जनरल नेम, वो क्या आएगा, एंटीऑक्सीडेंट्स. क्लियर इतनी बात. नाउ देखिए सिमिलरली फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, स्टेट एन इम्पोर्टेंट यूज ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ओके, ना उसके बाद 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो एंटीऑक्सीडेंट से रिलेटेड, दैट आई विल एक्सप्लेन डेफिनेटली. सो let us write the answer of 7th question. So it is related to decomposition reaction. उसने यही पूछा है कि जो decomposition reaction है so इसका important use क्या है, ठीक है, state an important use of decomposition reaction. So देखिए important use की अगर हम बात करें, डायरेक्ट अगर मैं आंसर की बात करूँ, तो देखिए सबसे पहले तो डाइजेशन ऑफ फूड, ये एक इम्पोर्टेंस है ना. डाइजेशन ऑफ फूड मतलब ये समझ लिए कि डेली लाइफ में आप जो भी रिएक्शन या हमारे बॉडी में हो रही है, जो भी हो रही है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो डिकम्पोजिशन टाइप ऑफ है ना, सो वो अपने इंपॉर्टेंट में आ जाएगा. तो डाइजेशन ऑफ फूड ये केमिकल रिएक्शन है जो कि डिकम्पोजिशन है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ सेकेंड वन क्या हो सकता है, सेकेंड वन ये हो सकता है कि जो हमारा वाटर है ना, वाटर का डिकम्पोजिशन, वाटर का डिकम्पोजिशन है ना, किसके वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, है ना. वाटर के थ्रू अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें, ठीक है, अगर देखिए वाटर के थ्रू ही नहीं, सिर्फ क्योंकि वाटर जो होता है ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसमें हम कुछ थोड़ा अमाउंट ऑफ एसिड डालेंगे तो उसमें आयंस अवेलेबल रहेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू पास होगी. तो जो है वाटर है वो ब्रेक डाउन होगा किसमें, वाटर जो है ब्रेक डाउन होगा किसमें, वाटर ब्रेक डाउन होगा H2 गैस एंड O2 गैस में. सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर है. सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट ओके examples of digestion of decomposition reactions. Okay, so let us now move toward the next question. Okay, and what is this question, that is a question. I would like to zoom here so that इसको हमें पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा. तो देखिए जो क्वेश्चन है 8 नंबर का, व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट, व्हाई आर दे एडेड टू फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स. सो इट इज अ वेरी सिंपल एंड these are the points you can also add in your notebook about decomposition reaction. Clear. Now let us move toward the question, that is 8 number.
So we will write the answer for this question. So here what is asking, what are antioxidants? So अभी मैंने आपको बताया एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में. एक सिंपल वे में अगर हम बात करें ऑक्सीडेंट्स ना, अगर हम सिंपल वर्ड में बात करें, विच inhibits oxidation of food, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल्स, ठीक है ना. सो हमने यहाँ पे समझा दिया. सो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, जो इनहिबिट करते हैं. क्या इनहिबिट करते हैं? ऑक्सीडेशन. किसका ऑक्सीडेशन? तो जो फूड मटेरियल होते हैं उनका. नाउ व्हाट यू मीन बाय इनहिबिट मतलब रोकना, है ना, ऑक्सीडेशन होने से बचाना या रोकना, ठीक है. सो रुकावट पैदा करते हैं. दैट केमिकल्स आर कॉल्ड एज एंटीऑक्सीडेंट्स. ऐसे केमिकल्स को हम लोग कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स. क्लियर है? ये एक सिंपल सी और सबसे पहला आंसर हो गया. नाउ व्हाई आर दे एडेड टू फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स? सो व्हाई दे आर एडेड, तो जो सेकंड पॉइंट है उसका आंसर क्या होगा? व्हाई दे आर एडेड, है ना. तो सिंपल है क्या, कि जो ऑक्सीडेशन से उसको बचाने के लिए, है ना. व्हाई आर दे एडेड टू फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड? टू प्रिवेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन. ये हम लोग क्या कर सकते हैं, आंसर में अपने लिख सकते हैं, है ना, टू प्रिवेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन. क्लियर? सो दैट्स व्हाई दे आर एडेड टू फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स. क्लियर? यू कैन राइट दिस आंसर. नाउ द question, that is 9th number of question. So let us read first of all what is the question here. Now explain why food produce containing fat and oils like ठीक है, पोटैटो चिप्स आर पैकेज्ड इन नाइट्रोजन. सो मैं आपको बताना चाहूंगा अबाउट नाइट्रोजन, ठीक है ना. मैं नाइट्रोजन आपको उसकी केमिस्ट्री थोड़े बताना चाहूंगा कि व्हाई इट इज यूज्ड एज ए एंटीऑक्सीडेंट. ओके, जो पैकेज फूड रहता है हमारे चिप्स वगैरह हो गए, तो इनमें क्यों नाइट्रोजन यूज किया जाता है. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा नाइट्रोजन के बारे में, बिकॉज आप 10th क्लास में आ गए हो. सो जो नाइट्रोजन होता है ना हमारा, जब हम कार्बोनाइट्स कंपाउंड पढ़ेंगे वहां पर आपको बेहतर तरीके से समझ में आना ये पार्ट. और सो नाइट्रोजन जो होता है, ये मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है N2, है ना. और इसके आप केमिस्ट्री अगर देखें तो ये इसकी केमिस्ट्री होती है इस तरीके से, मतलब एक नाइट्रोजन एटम दूसरे नाइट्रोजन एटम से ट्रिपली बॉन्डेड होता है. मतलब ये जो 3 लाइंस आपको दिख रही है कैसा है, ट्रिपली बॉन्डेड होता है. ट्रिपली बॉन्डेड मतलब ये जो बॉन्ड है, ओके, ये जो बॉन्ड है इसे इजीली ब्रेक नहीं किया जा सकता. इजीली ब्रेक नहीं होता. और इसे ब्रेक नहीं होता मतलब ये सिर्फ N2 के फॉर्म में है, तब तक ये किस तरह से काम करेगा, ठीक है, तब तक ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा. क्लियर है? और इसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है, जो कि उतना हीट अवेलेबल नहीं रहता एयर में. इसलिए जो N2 है, ठीक है, ये कैसी है, स्टेबल गैस है. ये जो गैस है ये कैसी है, ये स्टेबल गैस है बस समझ में. सो इसलिए क्या करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग कि एक्सप्लेन व्हाई फूड प्रोडक्ट्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल आर पैकेज्ड इन नाइट्रोजन. इट इज बिकॉज दिस नाइट्रोजन गैस, ठीक है, दिस नाइट्रोजन गैस, आपको वही लिखना है बार बार, क्या, नाइट्रोजन गैस इज इनर्ट मतलब कैसी है, ये स्टेबल है एंड prevents from oxidation of food. So you have to write this word, okay, again and again. जब भी आपको पूछा गया है तो भैया एंटीऑक्सीडेंट या फिर नाइट्रोजन क्यों यूज किया जाता है, तो प्रिवेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. क्लियर है? तो that should be your answer. Now let us move toward the last question of this video. So again I would like to zoom so that आप जो है क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर पाओगे. So the last question of this video is in first of all हम जो है क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं. Give one example of a decomposition reaction which is carried out with electricity and by applying heat. तो ठीक है, दोनों एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं.
सो जो है आंसर हम लोग करेंगे 10th नंबर के क्वेश्चन का। तो सबसे पहले जो है विथ इलेक्ट्रिसिटी वाला एग्जांपल देख लेते हैं। विथ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो टाइप पूछा गया है, टाइप कौन सा है, जो टाइप हमको पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, इट इज ऑफ डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन का एक एग्जांपल तो वो है हमारे पास में H2O, ठीक है। और ये H2O कैसा है, ये एसिडिफाइड, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो वाटर है ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए हम कुछ इसमें अमाउंट ऑफ एसिड डाल देंगे तो जो है कंडक्टर हो जाएगा। और जब हम इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस एंड O2 गैस। ये दोनों क्या है, ये गैस, ठीक है ना। सो इसमें बैलेंस करना पड़ता है हमको, ट्वाइस H2O, तो ये हो जाएगा 2H2 और ये 2 ऑक्सीजन बराबर। नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस। तो हमको यहाँ बैलेंस सिंपली क्या पूछा गया है, एग्जांपल्स, ठीक है। सेकंड लिख सकते हैं हम लोग बाय अप्लाइंग हीट वाला। तो देखिए बाय अप्लाइंग हीट वाला कौन सा एग्जांपल हो सकता है अपने पास में। देखिए एक सबसे अच्छा एग्जांपल अपने पास में है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। सो कैल्शियम कार्बोनेट की अगर मैं बात करूँ तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप ये स्ट्रांगली हीट करते हो, ठीक है, ये जो सिंबल है ये हीटिंग का है, इसको क्या करते हो, हीट करते हो स्ट्रांगली। सो इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। सो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है जनरली जो हम इसका यूज करते हैं चौक बनाने के लिए, ठीक है। चौक जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट से बनाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्या है, ये है चूना, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइम या क्यूबिक लाइम। और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये तो सिंपली उसने क्या पूछा था, एग्जांपल पूछा। सो आज की क्लास में इतना ही। हमने क्या डिस्कस किया आज की क्लास में, आज की क्लास में हमने डिस्कस किया 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो एक्सप्लेनेशन जो है मैंने दिया है इस वीडियो में क्वेश्चंस के बारे में, उसके आंसर्स के बारे में, इसलिए थोड़ा समय लगा, तो कोई बात नहीं, आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्लियर है। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विथ न्यू क्वेश्चंस ऑफ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप questions, okay। So thank you so much for watching my video.